Hi guys, welcome to yet another episode of Sports Star Extras IPL special. This one is probably the most special of them all because this is an episode that we are dedicating to our love for Sharjah Cricket Stadium and the cricket that used to happen in Sharjah back in the 80s and 90s. It was a part of the popular culture, and now that the IPL is going to Sharjah and cricket is returning to Sharjah overall after a long time. So we thought, why not do a special episode talking about our memories from Sharjah cricket? I was just having a chat with Shayan the other day that we were talking about Azharuddin's 100 against Sri Lanka, Sanat Jayasuriya, Wasim Akram and Waqar Yunis in Sharjah. So many memories. Shayan, what do you think about this? Absolutely. Sharjah. Absolutely. See, cricket, for that, to put it categorically, cricket isn't coming back to Sharjah as such, but yes, top level cricket is. Yes. Because the last time the venue hosted a proper big ticket match was some 4 years ago. Right. Indian team doesn't travel there. The last time it had anything to do with Indian cricket was in 2014 when some matches of the IPL were held. So that way, big ticket cricket is returning to Sharjah after quite a long time. But having guessed, for all of us who have grown up in the 90s, Sharjah is an eternal part of our growing up years. It's a part of our childhood. Everybody will talk about the Desert Storm, that Sachin Tendulkar's fantastic knock. But come on, that is just one bit of it. There's so many matches. Exactly. You and I haven't seen the 80s. We were not even born perhaps on that time. But even there are 90s of cricket that we have seen. I can think of so many memories. Waqar Yunis, Wasim Akram, then Ataur Rahman of all people. I was suddenly having Vikram Rathore. So many memories. Rishikesh Kanitkar. So everyone has had a great impact. And specifically, Ridan, not just about perhaps India or Pakistan. The other teams also had a huge, memorable outing there. We were talking about that tri-series, India, Sri Lanka, Zimbabwe, especially that hammering that Henry Olonga got from Sachin. That was a talking point back in the day. So to make it a little more interesting, we thought we'll bring in one of our senior colleagues, Vijay Lokpalli, who's covered a lot of cricket in Sharjah, and we have two very special guests. That is for you to find out. Madipa, Mudassir bhai, welcome to this conversation with Sports Star. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम निकाला आपने. और आप तो दोनों बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, पुराने दोस्त हैं. सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि कितने दिनों बाद आप ये बात कर रहे हैं एक दूसरे से जूम पे, आमने सामने. मैं वो आंसर के मुद करेगा आंसर. पहले आप बोलिए, कोई बात नहीं. अच्छा, पहले तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि मुद्दी पाको मैं वालेकुम सलाम अलैकुम कहना चाहूँगा. नमस्कार, सत श्री अकाल, जो भी है. आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वी आर टॉकिंग. आई थिंक नियरली 3-4 साल हो गए हमें बात किए हुए. तो मेरी लास्ट टाइम आई मेट हिम इन दुबई. तो तब मेरे ख्याल एक बार बात हुई थी और उसके बाद बात नहीं हुई. बाकी उसके बाद ही वाज बिजी विद द पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आल्सो. मुदस्सिर भाई, आपको याद है कब मिले थे आप मदीपा से लास्ट? नहीं, ठीक है. मदी के दुबई में बड़ी एक ब्रीफ सी मुलाकात हुई, क्योंकि उसके बाद 8 साल काम किया मैंने आईसीसी अकेडमी के लिए. तो फिर मैं पाकिस्तान चला गया था, तो ऑब्वियसली आई वाज लिविंग इन पाकिस्तान, तो फिर मुलाकात नहीं हो सकी. दुबई में रहने का फायदा यह है कि वेरी सेंट्रल, मुलाकात भी हो जाती है. फिर वैसे भी हालात बेहतर थे पाकिस्तान इंडिया के, तो मेरा आना जाना रहता था इंडिया, तो जबरदस्त मुलाकातें होती थी. गोइंग बैक टू शारजाह, क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तान क्राउड होता था, सारे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे. इंडिया में इंडियन क्राउड होता था, इंडिया को सपोर्ट कर रहा था. शारजाह में इट वाज वेरी डिफरेंट, क्योंकि दोनों इकट्ठे बैठे होते थे जी. तो आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर जब सुबह हम वार्म अप के लिए चक्कर लगाते भाग के, तो पाकिस्तानी क्राउड ताली बजा रहा होता था, इंडियन साइड की तरफ आते थे तो पानी की बोतलें मारते थे वो. तो वो इसी तरह इंडिया की टीम के साथ होता था. तो और प्रेशर इसलिए होता प्लेयर्स को आपस में, तो दोस्ती भी थी ऑब्वियसली, फील्ड पे तो एक दूसरे का मुकाबला करना होता था, लेकिन असल प्रेशर क्राउड की तरफ से आता था, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि किसी सूरत में एक दूसरे से हार सके. तो उसमें जो बंदा जो उसमें पास हो जाता था, जो परफॉर्मेंस देता था, उसको पता चलता कि हाँ भी ये आगे जाएगा लड़का. तो इस तरह का प्रेशर जो ले सकता है. Mudassir bhai, now that IPL is going to happen,
So how do you look at this tournament? Do you think it is the best tournament for T20 in the world? With so much of the cream of world cricket will be now seen in UAE. Well, IPL is certainly the best tournament by far the best one, the 2020 tournament in the world. The whole world looks up to it. I know players, all they talk about is the IPL. Going to India, playing this league. Obviously, financial rewards are there, Yeah. and cricket is very, very entertaining. And then when you couple that with the crowd, every game is a sellout. And when you first started, you did a very clever thing, bringing Bollywood together with cricket. So it was straight away a big hit all over the world. And I remember watching ball by ball, the first IPL. I was living in Pakistan at that stage, and I enjoyed it, immensely enjoyed it. And I think it's been really good for Indian cricket. It's been good for world cricket as well. But Indian cricket, it brought in the money. Indian Cricket Board has used it really, really well. Look at all the infrastructure all over India, cricket-wise. It's fantastic. And cricket is now reaping the reward. They're training at better facilities, and within days they become heroes. They're on the screen. Everybody's watching them. Selection of the national team becomes a lot easier because you can see everybody now in action. And it has been a role model for all the other leagues. The leagues starting all over the world, even in associate countries, the leagues are starting, and they're all taking a feedback from the IPL. It's fantastic for cricket, and long it may continue. Madipa, you have been a media expert in every IPL tournament, I remember, right from 2008. So how do you look at this tournament? See, this IPL is one of the biggest brand in the world. In the world, I say, because the way they do it, the way they organize it, everything, the way the financial rewards is, I think this is the biggest brand. Every country players, जो भी players हैं, वो इस IPL में participate करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए आपकी value बढ़ती है और उसके साथ they earn a lot of money, which is I'm very happy for them, because it's not like older days people are begging for the posts, like मेरे को selected बना दो, मेरे को coach बना दो ये. But these IPL players, they are getting good rewards. They are more confident now, because that money also brings you a lot of confidence, because you want to do well and you want to again come back and play the IPL. It's the biggest brand. So दूसरी बात यह है कि IPL जो है this time is the most difficult IPL this time. बहुत मुश्किल है IPL. इस IPL को successful बनाने के लिए players, sports staff and the organizer, इनकी ज़्यादा responsibility है, क्योंकि ये कोई ऐसा हादसा ना हो जिससे कि ये टूर्नामेंट खतरे में पड़ जाए. ये बड़ी देखने वाली बात है. और दूसरी बात है, जैसे देखिए इंग्लैंड ने 3 सीरीज कराई है बैक टू बैक, नथिंग हैपन. एक इंसिडेंट हुआ है जेफर्ड आर्चर का, तो उसको उन्होंने मैच से बाहर बैठा दिया. दैट इज द वे वेयर यू हैव टू टेक डिसीजन. कल बीसीसीआई ने भी कहा है कि अगर कोई बायो बबल से जो है बाहर जाएगा उसको हम वी विल टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन, व्हिच इज वेरी वेरी गुड. So we are all looking forward to IPL. और एक और बात कहना चाहूँगा कि ये IPL से हो सकता है कि कोरोना वायरस की जो रेशियो है, दर जो है कम हो जाए. क्यों? क्योंकि 7 बजे से लेकर 10 बजे तक लोग तो घर पे ही बैठेंगे, और 10:30 के बाद कोई बाहर निकलता नहीं है. At least something bring the smile on the people faces, क्योंकि डर बहुत है. जो आप जैसी मर्जी कह लीजिए, कोरोना का जो डर है बहुत है, पर घर पे बैठे मैच देखेंगे, थोड़ी सी खुशी मिलेगी, तो उससे भी थोड़ा सा आपका माइंड सेट थोड़ा सा चेंज होता है. बट ये ब्रांड बहुत बड़ा है. I wish the matches will be good, and I want all the team be successful and play the way the cricket is played for the betterment. जो 2020 क्रिकेट में है ना, सबसे ज्यादा है कि आप टीम कैसे बनाते हैं, क्योंकि आपको आजकल जो है आपके पहले 6 ओवर, आजकल की जो 20 क्रिकेट हो रही है, अगर आप देखें तो जब से ये स्टार्ट हुआ है कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो चुकी है.
चाहे बैटिंग में हो, हिटिंग में हो, इम्प्रोवाइजेशन हो, बॉलिंग में हो, बैटिंग में हो, काफी ज्यादा हो चुकी है। तो पहले 6 ओवर अगर आज 50-60 रन बना लेते हैं तो वो एक सेट ऑफ द ट्यून है ना, क्योंकि मिडल में बैटिंग करना इतना आसान नहीं है, आप उठा के मार नहीं सकते, और आपको जो एवरेज मेंटेन करना है 7-8-10 का वो मेंटेन करना होता है मिडल में आकर। पर लास्ट में जो 4 ओवर है उसका वो भी ऐसे प्लेयर होने चाहिए जो 4 ओवर में 40 या 50 रन बना सके। तो बैलेंस ऑफ द टीम जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत जरूरी है कि कैसे आप बना रहे हैं। दूसरा बॉलर्स आप कैसे लेते हैं, बॉलर जो है लास्ट के जो 2 ओवर है, डेथ ओवर है, उनके ऊपर कौन बॉलिंग करता है आके। जैसे कई टीमों के पास डेथ ओवर में 2-3 ऐसे बॉलर हैं, जैसे मुंबई इंडियन के पास जसप्रीत बुमराह है, वो 1 ओवर करता है, बाद में 1 करता है, बीच में फिर 2 लास्ट में करता है, तो कम से कम रन देता है वो, और ज्यादातर मैचेस वो जिताता है। तो आपका कॉम्बिनेशन जैसे स्पिन का कॉम्बिनेशन है वो बड़ा जरूरी। लेग स्पिनर आजकल हैवी हुए हुए हैं, ऑफ स्पिनर के तो कोई इतना ज्यादा नहीं है, पर उन्होंने भी काफी इम्प्रोवाइजेशन कर ली है ऑफ स्पिनर ने भी। पर ये है कि टीम आपकी 11 क्या है, और 11 जो है इसको बनाना एक आर्ट है। अगर आप सही तरीके से चलते रहे, हो सकता है कि यूएई में आपको 3 स्पिनर भी मिले खेलने को, देखने को मिले खेलते हुए, ये भी हो सकता है। तो कंडीशन हैवी होंगी यूएई में, क्योंकि एक ही जगह पे 8-8, 10-10 मैचेस है, तो वेट डेज तो होगा ही होगा। Mudassir bhai, do you agree that T20 demands lot of strategy, lot of planning, and there is a lot of agility, strength, speed than the other 2 formats of the game? बिल्कुल है, छोटे से फॉर्मेट में इतनी सारी चीजें पैक की जाती हैं। और फॉर इंस्टेंस अगर पुराने जमाने में आप फास्ट बॉलर्स के में फर्स्ट बॉल यू गेट ऑलवेज बी अ लूजनर, तो ये चीजें तो देयर आर आउट ऑफ विंडो। पहले बॉल पे आपको टक से एक लेंथ पे डालना पड़ता है, फिर स्किल लेवल आपका बहुत ज्यादा ऊंचा होना चाहिए। आपने यॉर्कर भी करना है, आपने स्लो वन भी करना है, आपने क्रीज भी यूज करनी है, आपने बैटिंग क्रीज भी यूज करनी है, कॉर्नर पे भी मारना है उस क्रीज का बॉल। फिर स्पिनर्स का भी यही है, उनको मुख्तलिफ वैरायटी है, खासकर लेग स्पिनर बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं इसमें। फिर आप जिनकी मदी बात कर रहे हैं जिस कंडीशंस की, उसमें डोंट फॉरगेट कि यहाँ पे सिर्फ टर्न नहीं होना, तीनों ग्राउंड पे, खासकर शारजाह और अबू धाबी में, क्योंकि सी साइड पे है अबू धाबी, शारजाह में वैसे ही रिवर्स, तो इन सारी ग्राउंड्स पे रिवर्स बहुत लंबा चौड़ा होना, और जब रिवर्स हो रहा तो यॉर्कर मारना बहुत आसान हो जाए। इवन somebody with my height could bowl Yorkers. तो फिर Yorkers जब आप क्रीज यूज करके मारते हैं और ज्यादा मुश्किल होती है, एंगल यूज करते हैं, तो बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किलात हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें सोच के टीमिंग कॉम्बिनेशन बनेगा, और फिर इसी तरह से आप बैटिंग का देखते हैं। समटाइम्स इफ यू लूज द विकेट्स तो 20 ओवर इतने लंबे हो जाते हैं, खत्म होने के बाद। तो ये लोग जो सोचते हैं कि सिर्फ ये छक्के वक्के मारने की गेम है, ये नहीं है। नहीं। अब अगर आप टीम कंपोजिशन की बात करें तो राजस्थान मुझे बैंगलोर वो एक याद पड़ता है कि जो पहला इनिशियल मैचेस से टूर्नामेंट था, उसमें ऑलमोस्ट टेस्ट साइड खिलाड़ी दोनों, इतने जबरदस्त बैट्समैन उनके पास है, लेकिन नॉट इन ट्यून विद 2020 क्रिकेट। तो जब आप टीम बनाते हैं उसकी कंपोजिशन को देखना पड़ता है, अपोजिशन का क्या है, पिच के हालात क्या हैं, तो उस हिसाब से टीम बनती है। बड़ी एक साइंटिफिक सी चीज है, इसलिए आप देखते हैं बड़े बड़े नाम कोचेस भी ले जाते हैं। फिर जो प्रेपरेशन है, दूसरी लीग्स जो होती हैं वो बहुत लेट स्टार्ट, कितने लोग आते हैं आके खेल के चले जाते हैं, यहाँ पे बाकायदा उनको तैयार किया जाता है, पूरा एक कोच को टाइम दिया जाता है जल करने का टीम के साथ, which is remarkable with the IPL. Yeah. Madhipal, you must have been asked this question earlier also कि खाली स्टेडियम में खेलने का माहौल, मतलब कोई देखने वाला नहीं है, तो आप कैसे मोटिवेट करेंगे अपने आप को? क्या आपको फर्क पड़ता है कि कोई नहीं देख रहा स्टेडियम में? नहीं, देखिए अगर खेलने वाले जब खेल रहे हैं तो अगर वहां पे कोई देखने वाला नहीं होगा, वाह करने वाला नहीं होगा, तो उनको मजा नहीं आएगा। हर शॉट कोई अच्छा मारता है, क्लैपिंग होती है, मजा आता है, लाइक बॉलिंग अच्छा बॉल करता है तो उसे बॉलर को भी मजा आता है। पर क्राउड का ना होना थोड़ा सा ये तो है कि डिसएडवांटेज तो है, पर क्योंकि थोड़ा मोटिवेशन की अगर आप बात है कि मोटिवेट तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा, क्योंकि यू आर प्लेइंग ए प्रोफेशनल लीग, यू आर पेड फॉर द जॉब, चाहे आपको कैसे भी करना, आपको परफॉर्मेंस देना ही पड़ेगा। all the franchise those who are paying, they want expect you to do well. वो चाहते हैं कि हम टीमें परफॉर्म करें, जो भी खिलाड़ी है वो उनकी परफॉर्मेंस रहे।
बाकी क्राउड का फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि प्लेयर को जरा जोश आता है जब क्राउड बैठा होता है, कई बार जोश भी आता है। ऐसा भी होता है कई बार ज्यादा क्राउड अगर आगे पीछे बढ़ते हैं आप दब भी जाते हैं। पर ये 2020 का क्रिकेट है। पर इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये क्रिकेट में हर बॉल जो है इवेंट है, क्योंकि हर बॉल पे चेंज हो सकता है, हर ओवर पे गेम चेंज हो सकता है, और इसमें स्किल लेवल भी काफी है। देखिए आप देखिए बॉलिंग में कितनी इम्प्रोवाइजेशन आ गया, जॉर्कर कितने हैं, एक जॉर्कर स्टंप में मारते हैं, एक वो लाइन लगी होती है उसके बीच में मारते हैं, स्लोअर वन मारते हैं। डेविन ब्रावो कितना अच्छा स्लोअर वन मारता है, वो 500 विकेट ले चुका है अभी तक 2020 क्रिकेट में ही। तो ये इम्प्रोवाइजेशन तो हुई है, और बैटिंग में भी बहुत है, पीछे शॉट मारना, ये ऑल दिस थिंग्स इम्प्रोवाइजेशन मैकेन फैंटास्टिक। देखने को भी मजा आता है, कई बार ऐसा लगता है कि ये कैसे मारते हैं। पर एक बात और मैं कहना चाहूंगा वेरी स्ट्रांगली कि देखिए ये विकेट बैट्समैनों के लिए थोड़े से डिफरेंट रहेंगे। जैसे जब आपने टीमें बनाई, जब आपने टीमें खरीदी, तो आपने उस हिसाब से टीमें बनाई है जिस हिसाब से बॉम्बे ने जैसे टीम बनाई, उसमें बॉम्बे की विकेट को देखते हुए भी यहाँ गेम ऊंचा गया, एक होम एंड अवे गेम होती है। दूसरी विकेटों को पता तो है इंडिया में कौन सी विकेट क्या क्या करती है, ये तो कैप्टन और कोच को सबको मालूम होता है कि कहाँ हम खेल रहे हैं, क्या होने वाला। पर यहाँ पे मैं समझता हूँ कि बैट्समैनों पे थोड़ा टेस्ट होगा। मेरे को लगता है कि 200 से ऊपर रन बनना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा इन विकेट्स के ऊपर। बाकी आई डोंट नो, क्योंकि 2020 क्रिकेट में तो कुछ भी हो सकता है कि जब हिटिंग होती है तो कुछ 200 भी पार होता है, बट इतना आसान नहीं होगा इस बार। जितने 200 यहाँ पे हो गए ना इंडिया में, वहां पे नहीं होंगे मेरे विचार में। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि जितने हैट्रिक यहाँ पे भी हो, शायद वहां पे भी हैट्रिक ज्यादा हो, क्योंकि गेम अगर थोड़ा सा नीचे रहे तो उससे ज्यादा चांसेस है विकेट्स मिलने के। अपने टाइम के अगर आपको 2 खिलाड़ी पिक करने हैं, एक बैट्समैन एक बॉलर, जो आपको लगता है कि T20 में बहुत जबरदस्त परफॉर्म करते हैं, तो आप एक खिलाड़ी चुन लीजिए हमारे लिए। मैं जो आई थिंक although he came to the end of my career, लेकिन 4-5 साल मैं खेला उसके साथ, वसीम अकरम के साथ। अच्छा, उसके मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे मौका मिल गया तो एक वनडे में उसको शानदार जमैल ने 4 चौके मार दिया आखिरी ओवर में। तो इमरान केम इन ड्रेसिंग रूम, थ्रू स्पाइक्स डाउन, ही सेड बस ऐसे काम नहीं चलेगा, यू हैव टू लर्न टू बॉल यॉर्कर्स। और तो हालांकि हमारे पास कोच था, मैनेजर कहते थे उनको, इंतखाब वालों को, लेकिन इस तरह का काम मुझे भी दिया जाता था, मुझे कल इसको जाके प्रैक्टिस करानी, यॉर्कर कराने की। तो मैं उसको ले गया, सुबह 8 बजे हम निकले ग्राउंड पे चले गए, एक स्टंप लगा के मैंने उसको सिर्फ ये कीप योरसेल्फ टॉल, जैसे गार्डनर मारता है ना, लिफ्ट योरसेल्फ, और बेस पे तुमने मारना बॉल। उसने पहला बॉल लाके था के मार दिया उधर, दूसरा भी मार दिया, 6 के 6 उसने मार दिया, 6 के 6 विकेटों में लगे। तो मैंने अब सोचा मैं इसको क्या सिखाऊं। उसके बाद हम वापस आ गए, वापस वो इमरान नाइट से कह रहा था, तो लॉबी के पास ही था वो रेस्टोरेंट, तो उसने कहा ये क्या हुआ, वो है भी कम बैक, क्या हुआ, ग्राउंड नहीं अवेलेबल। मैंने कहा मैं क्या करूं, उसे 6 के 6 मार दिए खाना आपने। तो इस तरह का अगर आपके पास आ जाए बकाया यूनुस ऐसे, और तो बकाया यूनुस अगर उसको नए गेंद पे उसको बड़ी मार पड़ी थी, क्योंकि वो बाज नहीं आता यॉर्कर मारना, हर बॉल पे यॉर्कर मारने की कोशिश करता है, नए गेंद पे मारना यॉर्कर बहुत मुश्किल होता है। ऑल्दो बकाया हैड द एबिलिटी, लेकिन जब रिवर्स हो रहा था आसान हो जाता है। समबडी विद द कैलिबर ऑफ वसीम अकरम, वो 6 के 6 मार देता था, तो ऑब्वियसली आप वसीम इन माय माइंड। एंड बैट्समैन T20 में जो मेरे जमाने में तो माजिद जहीर, ये दोनों बड़े जबरदस्त खेलते थे। और एक मैं बोल रहा हूँ आसिफ इकबाल। आई थिंक अगर पाकिस्तान की अगर नॉट 2020 लेकिन अगर वनडे की टीम बनती तो आसिफ इकबाल विल बी द फर्स्ट नेम ऑन दैट लिस्ट। अगर आप उसकी कैंट के लिए परफॉर्मेंसेस देखें, उन दिनों में जिलेट कप और जॉन प्ले लीग होती थी इंग्लैंड में, तो इवन आई वाज लुकिंग एट सम स्कोर्स यस्टरडे इन द इवनिंग, शौक था मुझे, तो मैं देखा जो जॉन प्ले लीग में कैंट पॉलन उससे स्ट्रेट में ओपनिंग होनी शुरू कर दी थी उससे, तो somebody like him could have been there. एंड मदीपा, आप जरा पिक कीजिए एक बैट्समैन एक बॉलर अपने टाइम का T20 के लिए। मैं समझता हूँ कि कपिल देव will comes in number 1 में now as a all-rounder, क्योंकि he has a capacity to hit lot of long shots and he was a moving ball. Anybody who moves the ball still will get a wickets in the IPL also. आपने देखा दीपक चार बॉल को मूव करता है और विकेट्स लेता भी है। अगर मूवमेंट है तो आप स्टिल विकेट ले सकते हैं।
ये Kapil Dev is the top priority for me, you know, like in IPL. He could have been worth a lot more. And one batsman. बैट्समैन वरिंदर सहवाग नहीं, वरिंदर सहवाग तो है ही है। नहीं, तो- आपके टाइम हमारे टाइम में तो कोई ज्यादा इतना आप किसको कह सकते हो आप? नाम लो, श्रीकांत और कौन? नहीं, संदीप श्रीकांत पाठक, और- श्रीकांत, दो नाम आते हैं। हैं? संदीप पाठक, श्रीकांत, दो नाम बढ़ गया। Can be good bat. Yes. संदीप पाटिल कैन बी गुड बैटर बिकॉज वो काफी हार्ड हिटिंग करता था और अच्छा वो उसके पास शॉट्स भी काफी थे। जी जी Thank you so much, Madipa, Vijay sir, Mudassir sir, Shayan. I think अगर हम लोग अभी खत्म नहीं करेंगे तो हम बातें करते ही जाएंगे शायद. So, but thank you so much for doing this. It is great to Thank you so speak much, to all yeah. of you. Thank you बहुत so बहुत much. शुक्रिया, थैंक यू।